عاصم سلیم باجوہ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے دستبردار۔ عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم نے ان کی معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑنے کی درخواست قبول کر لی۔ وزیراعظم سے معاون خصوصی کے اضافی عہدے سے دستبرداری کی درخواست کی تھی۔ وکلاء کی تقریب میں شرکت پر سپریم کورٹ کا وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، وزیر اعظم پورے ملک کا ہے، کسی ایک گروپ کا نہیں۔ وزیر اعظم نے وکلاء کی تقریب میں شرکت کر کے ایک گروپ کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نے نجی حیثیت میں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، انچارج کنونشن سینٹر اور متعلقہ وزارتوں کو بھی نوٹسز جاری۔ کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اطلاق سے پہلے ہی اٹھانے کی وجہ سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی کے متعدد سرکردہ رہنماؤں، کابینہ ارکان نے ڈبل سواری پر پابندی کے خلاف اعتراض کیا۔ کہا، ڈبل سواری پر پابندی سے پی ڈی ایم جلسے کی تیاری متاثر ہوگی۔ سیکیورٹی خدشات کے باوجود ڈبل سواری پر پابندی کا حکم نامہ واپس لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، اپوزیشن کی ممکنہ تحریک اور اس سے نمٹنے پر مشاورت، ملکی سیاسی صورتحال پر غور۔ اجلاس میں اپوزیشن کے بیانیے کے مقابلے میں جوابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے شہزاد اکبر اور یوسف بیگ مرزا نے بھی ملاقات کی، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم ان ایکشن، ٹائیگر فورس کی ممکنہ ذمہ داریوں پر بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ عمران خان نے معاون خصوصی عثمان ڈار کو آج بلا لیا۔ عثمان ڈار ٹائیگر فورس کو متحرک کرنے کا جامع روڈ میپ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم نے صوبائی چیف سیکرٹریز اور معاشی ٹیم کو بھی طلب کر لیا۔ مہنگائی میں کمی کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس کل شام کو ہوگا۔ آٹے کی کیا قیمت ہے وزیر اعظم کو معلوم ہی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم مہنگائی اور عوام کی تکالیف سے بے خبر ہیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 16 اکتوبر کا جلسہ نااہل حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم ہوگا، کٹ پتلی حکومت مستعفی نہ ہوئی تو عوام کا سیلاب اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ غریب کے لیے ایک اور امتحان، سنگین ہونے لگا آٹے کا بحران، 2 وقت پیٹ کیسے بھرے، ہر کوئی پریشان۔ چکی آٹا کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فلور ملز نے بھی سپلائی کم کر دی۔ لاہور میں آٹا نایاب، جگہ جگہ شہریوں کی لمبی قطاریں۔ چکی مالکان نے آٹے کی قیمت مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا بھی روٹی اور نان پرانے نرخوں پر فروخت کرنے سے انکار۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ، شہر میں پارہ 37.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کی پیشگوئی پر محکمہ صحت نے تمام اسپتالوں کو الرٹ جاری کر دیا۔ نیشنل T20 کپ، راولپنڈی میں ایکشن سے بھرپور مقابلے جاری۔ صدرن پنجاب کی خیبر پختونخوا کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ۔ شام 7:30 بجے بلوچستان اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فرینچ موٹو جی پی ریس ایونٹ میں دنیا بھر سے بائکرز کی شرکت۔ اٹلی کے ڈنالو پیٹروچی نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریس اپنے نام کر لی۔
से पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में वकला की तकरीब में शिरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस दे दिया है। जायदाद से मुताल्लिक एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक ग्रुप या ग्रोह के नहीं। वज़ीर आज़म ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की है। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए। वज़ीर आज़म ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म मुल्क के हर फर्द का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म की किसी खास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती। मजीद कहा, ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर का रेवेन्यू इस्तेमाल किया गया। कन्वेंशन सेंटर किसी की जाती जायदाद नहीं है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ है। इमरान, कहिएगा इन तमाम रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द अमल आया? जी देखें, आज तो अदालत में ये पहली समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया है और नोटिस जारी होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को आइंदा समाअत के लिए असालतन या वकालतन पेश होने की बात की गई है अदालती नोटिस में। तो आज तो सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ इस मुकदमे के हवाले से क्या होता है, जब उनकी जानिब से कोई वकील आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होंगे तो तभी पता चल सकेगा कि वज़ीर आज़म का इस मामले पर मौक़िफ़ क्या है। लेकिन आज अदालत ने इस मुकदमे की समाअत करते हुए इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने वकला के एक खास ग्रुप के इंसाफ लॉयर फोरम की तकरीब से खिताब किया था, उसके कन्वेंशन सेंटर के इंचार्ज से ये ज़रूर तलब किया है कि बताया जाए कि क्या इस तकरीब के लिए बाकायदा पहले से इजाज़त मांगी गई थी, क्या कोई अखराजात जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं इस तकरीब के मुनक़िद करने के हवाले से अदा किए गए हैं या नहीं किए गए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है और अदालत का ये कहना है कि ये एक बुनियादी हकूक़ का मामला है, इस पर आइन की तशरीह होनी चाहिए। उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अदालती नोटिस में यह भी कहा गया है कि क्योंकि इस मुकदमे में जो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का नाम भी सामने आ रहा है, तो लिहाजा एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के जो सीनियर तरीन एडिशनल एडवोकेट जनरल होंगे वो इस मुकदमे पर आइंदा समाअत पर पेश हों। और आज का अदालती हुक्मनामा डिक्टेट करने के बाद ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है और इस पर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से मुतल्लिक ये मुकदमा था 2 प्राइवेट फ्रीचैन के दरमियान। इसमें जो एडवोकेट जनरल अहमद अवैस हैं उन्हें एक फरीक की जानिब से वकील किया गया था, लेकिन जब अहमद अवैस एलिवेट हो गए, एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिए गए, तो उसके बाद वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जानिब से अदालत को एक दरख्वास्त दी गई थी कि चूंकि अहमद अवैस जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं, तो लिहाजा जो मुकदमे का मुतलका फरीक है उसे और वकील की मुतबादिल वकील की खिदमात हासिल करने के लिए वक्त दिया जाए, इस केस को आज मुलतवी किया जाए। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने आज अदालती कार्रवाई के दौरान ये रिमार्क दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब बनने के बाद अहमद अवैस जो है वो किस तरह से इस किस्म की सरगर्मियां, जिसमें एक वकला के मखसूस ग्रुप की तकरीब थी, उसमें शिरकत कर सकते थे। एडवोकेट जनरल पंजाब का मनसब संभालने के बाद उन्हें इस किस्म की तकरीबात में शिरकत करने से अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात भी होने वाले हैं जिसमें अहमद अवैस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो इस किस्म की सरगर्मियों में एडवोकेट जनरल पंजाब शरीक नहीं हो सकते। इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हर फर्द हर शख्स के वज़ीर आज़म हैं, किसी सियासी जमात के एक सियासी जमात के वो वज़ीर आज़म नहीं है। किस तरह से वो एक वकला के मखसूस ग्रुप की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं और एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर जिसके जो अखराजात हैं टैक्स पेयर के टैक्स के साथ अदा किए जाते हैं, अगर इस किस्म की प्राइवेट तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिरकत भी करना थी तो ये अगर निजी होटल में इसका इनेकाद किया जाता तो शायद कोई ऑब्जेक्शन ना। अच्छा इमरान वसीम, जैसे कि आप तफसीली हमें बता रहे हैं कि अदालत ने इस्तफसार क्या किए, तो थोड़ी सी वजाहत इस बात की भी कर दीजिए कि जब अदालत ने इस मामले पर रिमार्क्स दिए तो आया उनका एतराज़ वज़ीर आज़म के तकरीब में शिरकत पर था या फिर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब के मुनक्किद होने पर था? देखें, उनका कन्वेंशन सेंटर में तकरीब पर एतराज़ नज़र नहीं आता। जस्टिस काजी फाइसा के जो रिमार्क्स थे उससे ये वाज़ेह होता है कि जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के होते हैं, किसी एक सेगमेंट के नहीं होते, तो किसी एक सेगमेंट को वकला के एक ग्रुप को वो किस तरह से सपोर्ट कर सकते थे। अगर ये एक प्राइवेट तकरीब थी तो प्राइवेट तकरीब के लिए कोई प्राइवेट होटल किया जाता,
वहाँ पर शिरकत की जाती वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तो अलग बात थी, लेकिन अगर वज़ीर आज़म खुद भी एक प्राइवेट हैसियत में, ज़ाती हैसियत में इस तकरीब में शरीक हुए थे, तो तब भी एक ऐसा वेन्यू जो पाकिस्तान के लोगों के टैक्स के साथ चलता है, तो वहाँ पर ये तकरीब किस तरह से हो सकती है। यही वजह है कि अदालत के ऑर्डर में ये भी मांगा गया है जो इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर है कि क्या इस तकरीब के लिए कोई एडवांस में परमिशन हासिल की गई थी, कोई पेमेंट्स वगैरह, कोई अखराजात भी इसकी अदा किए गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस मुकदमे को आइंदा समाअत तक मुलतवी किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भिजवा दिया गया है ताकि इस मामले पर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भी भिजवा दिया गया है और अदालत की जानिब से इस्तफसार भी किया गया है कि ये बुनियादी हुकूक का मामला है, आइन की तशरीह होनी चाहिए। इमरान वसीम आप साथ थे, आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया।